Hey guys, welcome or welcome back to my channel, The Digital Mastery. This is Anam, and in today's particular video we will be talking about the pre-writing strokes once again. In the previous video of pre-writing strokes, I have mentioned the main 4 strokes that were standing line, sleeping line, forward slant and backward slant. But in today's video we will be talking about the curve lines. What are the curve lines? But before starting with that, let us recapitulate what we have learned earlier. Firstly, we have done the worksheets for standing lines, sleeping lines, forward slant, backward slant, and the recapitulation of all. The mixture of all the exercises. हमने पिछली वीडियो में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लैंट्स किए हैं. उसके अलावा हमने बाकी सारी इन्हीं सारी लाइंस का रिकैपिचुलेशन किया है और कुछ एक्सरसाइजेस की हैं दैट वर फॉर द आइडेंटिफिकेशन. ऑलराइट, so we are done with standing, sleeping and slants. So as I've told, today we will be talking about the curve lines. So talking about the curves, there are 4 curves. Okay, there are 4 curves. The first one is right open curve. Okay, the second one is left open curve. The third one is upward open curve. And the fourth one is downward open curve. So mainly we will talk about the curves only and its kinds. So there are 4 kinds as I have mentioned: right, left, up and down. Okay, so we will talk about these 4. So firstly, I have planned these worksheets for all the curves. This is worksheet number 11. In the previous video I have given 10 worksheets for the standing, sleeping and slanting lines. So for the curves I have planned 6 more worksheets. So you can just plan these worksheets in the notebook of your child, and then you can ask him or her to solve this. And there's nothing complicated in solving this. See, this is worksheet number 11 and pre-writing stroke number 5, that is right open curve. So here I have given a fish just to attract the interest of the child. So what you have to ask your child is just trace this. This is right open curve, and while tracing ask him or her that he or she should name this line. Which line is this? This is right open curve. What is this? This is right open curve. Right open curve. Right open curve. In the same way you have to ask your child to do this. Okay, so ask them not to go out of the line. They should trace on this line only. Okay, so as I have told you, जब बच्चे राइटिंग सीखते हैं, जब बच्चे इंडिविजुअल राइटिंग पर आते हैं, तो जो ये प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फॉर्मेशन सीखने पे, लेटर्स फॉर्मेशन सीखने पे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर आर लाइंस लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट्स, कर्व्स. ये 4 लाइंस होती हैं. जब बच्चा ए सीखता है तो हम लेफ्ट, राइट, ये हो गए आपके स्लैंट्स, एंड देन स्लीपिंग लाइन. जब बच्चा बी सीखता है तो स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट ओपन कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व. ओके, जब सी सीखता है तो एक राइट ओपन कर्व. इस तरीके से ही उसको ये सारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को ज्वाइन करके ही वो लेटर्स की फॉर्मेशन सीखता है. तो अगर आप बच्चे को राइटिंग सिखाने से पहले ये सारे स्ट्रोक्स सिखाएंगे तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा फॉर्मेशन को सीखना, लेटर्स को सीखना. जिस तरह मैंने ए, बी और सी का एग्जाम्पल दिया, सेम वे आप कोई भी लेटर ले लीजिए, उसमें यही स्ट्रोक्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप पी ले रहे हैं, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट ओपन कर्व. आप एस ले रहे हैं, 1 राइट ओपन कर्व, 1 लेफ्ट ओपन कर्व. आप टी ले रहे हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. सो दिस वे बच्चा आपका जो है राइटिंग को सीखता है, लेटर फॉर्मेशन को सीखता है.
Okay, so talking about the right open curve, here I have given this figure, that is fish, to attract the interest of the child, and then here I have given some right open curves for practice. Okay, so from now on we will not be giving them the separate practice work. We will be doing it along with the figure itself. Okay, so this is right open curve. What is this? This is right open curve. जिस तरह मैं इसको ट्रेस करते समय नेम कर रही हूँ, सेम वे आपको बच्चे को कराना है. जब वो इसको ट्रेस करेगा साथ ही साथ उसको नाम लेना है. इससे क्या होगा, एक तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होगी, साथ ही साथ वो इसके नाम को मेमोराइज रख पाएगा. नाउ सेकेंड स्ट्रोक, दैट इज लेफ्ट ओपन कर्व. वर्कशीट नंबर 12, स्ट्रोक नंबर 6, एंड दैट इज लेफ्ट ओपन कर्व. अगेन बच्चे को सिखाना है जो लेफ्ट हैंड की तरफ खुलता है वो लेफ्ट ओपन कर्व है, और जो राइट हैंड की तरफ खुलता है वो राइट ओपन कर्व है. ऑलराइट, सो जब बच्चा इसको भी ट्रेस करेगा देन उसको उससे कहलवाना है आपको दैट दिस इज लेफ्ट ओपन कर्व. व्हाट इज दिस? दिस इज लेफ्ट ओपन कर्व. एंड डोंट गो आउट ऑफ द लाइन, जस्ट ट्रेस ऑन द लाइन. जब बच्चा फिगर वाली लाइन को ट्रेस करे तो आस्क हिम कि वो पेंसिल को बीच में उठाए नहीं. जब वो यहाँ से शुरू करे तो इस पॉइंट पर खत्म करे. एक ही स्ट्रोक में उसको ये पूरा करना है. इससे क्या होगा, बच्चे की हैंड मूवमेंट बढ़ेगी, उसकी रिस्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ये जो फोर्स पॉइंट होता है, अगर बच्चा जब बच्चा ट्रेसिंग सीखता है ये हाथ ऊपर रखता है. जब बच्चा इसको एक ही स्ट्रोक में करना सीखता है तो ये हाथ की जो रिस्ट होती है नीचे की तरफ आती है. जितना ये नोटबुक की तरफ आना शुरू हो जाएगी, बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा पेंसिल पकड़ने का, उतना ही उसके लिए राइटिंग सीखना ईजी रहेगा. Alright, so after doing this, again here are some practice strokes, that is left open curve. Again ask him or her to name it while tracing. What is this? This is left open curve. Left open curve. This way उसको ये करना है. Then now worksheet number 13 I have planned, that is stroke number 7, and it is upward open curve. आप इसको अपवर्ड ओपन कर्व कह सकते हैं, अप ओपन कर्व कह सकते हैं. ऑलराइट, सो अगेन यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स दिए हैं और उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं. बच्चे को शेप्स को ऑब्जेक्ट से मैच करना है व्हाइल ट्रेसिंग दीज अप ओपन कर्व्स. व्हाट इज दिस? दिस इज अप ओपन कर्व. अगेन मैंने बताया जहाँ पर फिगर्स हैं वो वाली लाइन को बच्चे को एक ही स्ट्रोक में ट्रेस करना है. उसको बोलिए कि बार बार हाथ ना उठाए, पेंसिल ना उठाए. कोशिश करें, अगर उठा भी लेता है तो नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करें कि वो हाथ को नहीं उठाए, एक ही स्ट्रोक में इसको पूरा करें इस तरह. इससे अगेन वही चीज़ है, हैंड मूवमेंट बढ़ेगी, रिस्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगी. सो दिस वे दे हैव टू डू दिस, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस दे हैव दीज practice strokes, that is up open curve. Again ask them to name this while tracing. What is this? This is up open curve, upward open curve or up open curve, same thing. Now so this is worksheet number 14, stroke number 8, and that is downward open curve. ये downward open curve है. जो नीचे की तरफ खुलेगा वो downward open curve, जो ऊपर की तरफ खुलेगा वो upward open curve. आप अगर बच्चा इतना लंबा नाम नहीं ले पा रहा है, upward open curve, downward open curve, so आप सिर्फ उसको up open curve और down open curve या up curve, down curve भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So here I have planned again one figure to attract the child's interest. So again you have to ask him or her to trace this. What is this? This is down open curve. Down open curve. They have to trace all these lines. And जब आप बच्चे को ये फिगर के बारे में बता रहे हैं कि ये कर्व्स हैं, साथ ही साथ आप इसका नाम भी बताएं. जैसे what was this? This was circle and it is a circle shaped ball. What is this? This is a triangle shaped pizza slice. What is this? This is a semicircle shaped watermelon. Again, what is this? This is a rainbow. How many colors a rainbow have? It has 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay, what are these? These are clouds. What color the clouds are? The clouds are blue. Again, here are some practice strokes, that is down open curve, down open curve, down open curve. Again same चीज़ है, बच्चे से नेम करवाना है जब वो ट्रेस कर रहा है. Now worksheet number 15 is the recapitulation of left and right open curve. So बच्चे को अगेन जब साथ में स्ट्रोक्स होते हैं तो बच्चे से कहना है कि वो हाथ को अपने मूव ना करे, एक ही स्ट्रोक में इसको पूरा करने की कोशिश करे. ठीक है, और साथ ही साथ इसको नेम भी करते जाना है. लेफ्ट ओपन कर्व,
राइट ओपन कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व। इस तरीके से बच्चों को ये पूरा करना है। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज वर्कशीट नंबर 16। इट सेज सर्कल द लेफ्ट ओपन कर्व। तो बच्चे को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करनी है, यहाँ पर लेफ्ट ओपन कर्व कौन सा है। जो भी लेफ्ट ओपन कर्व को वो आइडेंटिफाई करता है उसको बोलिए कि उसको सर्कल बनाना है। दिस इज लेफ्ट ओपन कर्व। जो लेफ्ट हैंड की तरफ ओपन हो रहा है दैट इज लेफ्ट ओपन कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व। अगेन दिस इज राइट ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व। ऑल्सो आपको ये सारी वर्कशीट्स एक साथ प्लान कर लेनी है, लेकिन एक ही दिन में नहीं करानी है। आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग यू ऑल विच डे विच एक्सरसाइज। just plan all of them together but don't make your child do all together because एक तो वो थक जाएगा, दूसरी चीज बच्चा जो है एक ही दिन में सारे स्ट्रोक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जब आप एक स्ट्रोक के लिए 2 या 3 डेज लेंगे तभी बच्चा उसको मेमोराइज रख सकता है। अदरवाइज अगर आप एक ही साथ सारा कुछ करा रहे हैं इट इज ऑफ नो यूज। सो मेक श्योर कि आप एक दिन में उसको एक ही स्ट्रोक कराएं और पॉसिबल हो एक ही स्ट्रोक को 2 या 3 दिन तक कराएं। सेम चीज हम वर्चुअल क्लास में करते हैं, जो हमारी जिस HM ग्लोबल स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसमें हम एक ही चीज को कई दिन तक रिकैप्चुलेट करते हैं, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट फॉरगेट व्हाट ही हैव लर्नड। Okay, so this was it for today's class. Have a wonderful day ahead. This is Anand signing off for today.